ایک تو ہمارے پاس سینئر قیادت یہاں پر موجود ہے جو پریس اور کیمروں کے سامنے نہیں، ان کے سامنے اور دوست کٹھے ہوئے تھے وہ ان کے پیچھے آ گئی. اور دوسرا یہاں پر آئے ہوئے سارے میرے ایگزیکٹو کے کینڈیڈیٹ موجود ہیں، میں ان کا بھی تعارف کراتا چلوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو پہلے تو میں گجرات چیمبر آف کامرس کے متعلق بتاتا چلوں کہ ہر بندہ بزنس گروپ میں آنا کیوں چاہتا ہے اور اس کی عزت کیوں کرتا ہے. بڑی ایک سادی وجہ 2020 میں چند ایک دوستوں نے چیمبر کو دیکھا کہ وہاں الیکشن نہیں ہو رہا، سلیکشن ہو رہی ہے، تو ایک نعرہ لگایا سلیکشن نہیں الیکشن. تو اس کی آج آپ نعرے کی طاقت دیکھیں کہ چھوٹے سے چھوٹا تاجر اور بڑے سے بڑا انڈسٹریلسٹ ہر اس ووٹر کے پاس حاضر ہو رہا ہے جس کو وہ ملنا پسند نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے آپ پہ، مجھ پہ، بزنس گروپ پہ کہ ہم نے اپنے تاجر کی، اپنے انڈسٹریلسٹ کی عزت بنائی. اور اسی وجہ سے آج ہم جہاں پر بھی حاضر ہوئے ہیں اور ہمارے کینڈیڈیٹ اور دوسرے جو ہمارا گروپ ہے ان کے کینڈیڈیٹ ہر اس دکاندار، ہر اس کارخانے میں جا رہے ہیں جہاں پر آج تک ان کو ان گلیوں اور رستوں کا نہیں تھا پتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلیکشن والا معاملہ تھا ختم ہوا، الیکشن والا شروع ہوا، تو اس الیکشن میں ہم اترے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا میرے مالک کے کرم سے، رحمت سے ہم بزنس گروپ کو اس کے ساتھ آج یہاں پر جتنے میرے سینئرز کھڑے ہیں، سینئر دوست آئے ہیں بزنس گروپ کے، جو 4-5 دوستوں کو میں جہاں پر نام لوں گا جنہوں نے ہمیں جوائن کیا اسپیشلی ان دنوں میں، جو دوسرے گروپ کا حصہ رہے تھے. یہاں پر ازلم الاسلم صاحب موجود ہیں، یہاں پر پلاسٹک ایسوسیشن میں دوست موجود ہیں، یہاں پر ہمارے سمان خالد بٹ صاحب موجود ہیں، میرے ساتھ اور یہاں پر طارق برائے صاحب ہیں، حلیم صاحب ہیں، باقی سارے دوست جتنے ہیں جو وہاں سے یہاں پر تشریف لائے ان کا بھی شکریہ. اور جو ہمارا قافلے کا حصہ ہے ان کا تو ماشاءاللہ یہ اپنا ایک گروپ تھا جس میں ہم اکٹھے ہوئے اور آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک انتہائی عقل مند، صاف ستھرے، ایماندار اور کاروبار حضرات جو کاروباری حضرات ہیں ان کا ایک گلدستہ بنایا ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ میرے ووٹر، میرے دوست، میرے جتنے بھی یہاں پر پریس میڈیا کے بندے ہیں ان کے سامنے کوئی بندہ بھی میرے کسی کینڈیڈیٹ یا کسی سینئر کی طرف انگلی اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی جرم میں، کسی بے ایمانی میں، کسی اور معاملات میں انوالو ہے. آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں. تو میں اپنے جو کینڈیڈیٹ یہاں پر میرے پاس اس وقت تشریف فرما ہے، سب سے پہلے تو میں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ جو ہے غلام حسین جائز صاحب اور وقاص افسر صاحب کو آپ نے سنا، ان کو کہوں گا پلیز کائنڈلی تشریف لائیں. ظفر اقبال ڈار صاحب ہیں، رانا فرحان صاحب ہیں، عثمان خالد بٹ صاحب ہیں جو بہت بڑی آفر خودروا کر ہمارے پاس تشریف لائے. ان کی ایسوسیشن میں ایک جانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کیسی گڑبڑ ہوئی. حاجی عباس صاحب ہیں جموں سے آئے ہوئے، ملک جمیل صاحب ہیں، بابو ایوب مہر صاحب ہیں، میرے ساتھی عمار بٹ صاحب ہیں، چودھری حنیف صاحب میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، طارق برائے صاحب میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، رانا عرفان صاحب میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اسلم مٹو صاحب ہیں، افتخار بٹی صاحب ہیں، شیخ مہر صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، آپ اوپر آ جائیں مخصوص گورنمنٹ سے. اس کے ساتھ اگر کوئی اس کے علاوہ میرا کوئی کینڈیڈیٹ آئے ہیں تو وہ بھی کائنڈلی پلیز یہاں پر تشریف لے آئے. طاہر عزیز صاحب بھی آ چکے ہیں،
इन दोस्तों को बिजनेस ग्रुप की तरफ से इंतहाई मुशावरत के साथ हर सीनियर और हर जूनियर की मुशावरत के साथ ये मुश्तरका कैंडिडेट उतर रहे हैं बिजनेस ग्रुप के, और इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा मैं समझता हूँ कि प्लास्टिक एसोसिएशन को जो लीड कर रहे हैं राणा नेमुरमान साहब, ये आज उनका फंक्शन है। आप वो सदारती वो पुराने यहाँ इनके चेयरमैन भी हैं और आज की महफिल के सदर भी है। मैं समझता हूँ कि उनका यहाँ पर आना, मेरे साथ अपनी एसोसिएशन के साथ खड़ा होना, और इन दोस्तों से हम वादा नहीं लेंगे क्योंकि इन्होंने मेरिट पे लोगों को वोट देने हैं। वादे अलग वो लेते हैं जिनको अपने दोस्तों पर शक होता है। हमें ना आप पर शक है ना कोई बेतबारी है। जो यहाँ आ गए वो हमारे हैं, और जो नहीं आ सके किसी काम की वजह से, तीनों प्लास्टिक एसोसिएशन वाशिंग एसोसिएशन बैठी हुई है यहाँ पर, मेरे साथ यहाँ पर डेमोक्रेट पार्टी यहाँ पर मौजूद है। इन सब का आना हमारे लिए मैं समझता हूँ किसी वादे से कम नहीं है। इनके आने से आज आप देखें कि इस हाल में जितनी गुंजाइश है, जितने दोस्तों को बुलाया है, कमल से ज़्यादा की कैपेसिटी से ज़्यादा लोग यहाँ पर खड़े हैं। मैं सारे दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर जितने मेरे कैंडिडेट हैं ए और सी के, ये आपकी एक मुट्ठी होना और इनको पैनल वोट डालना, ये मेरी जमात का, मेरे दोस्तों का, मेरी एसोसिएशन का ये फर्ज है कि हम पैनल को जितवाएं, ना इसमें किसी बरादरी को लेके आए। यहाँ पर राजपूत मौजूद है, जट फेडरेशन मौजूद है, भट्ट साहबान मौजूद है, मुगल बरादरी मौजूद है, अंसारी बरादरी मौजूद है। हर वो बरादरी का नुमाइंदा हमारे मेरे दाएं और बाएं मेरे साथ खड़े हैं जो हम इस शहर में बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस ग्रुप की कोई बरादरी नहीं सिवाय बिजनेस ताजर और इंडस्ट्रियलिस्ट के, ये आपको बताते चले, और इंशाल्लाह बताना यही एक सिस्टम रहेगा। कभी बरादरी हमारी किसी जगह पे आए नहीं आएगी। सबको बताते चले कि दो सीनियर हैं, चाहे अमर अहमद साहब हो, आसिम अली साहब हो, राना नासर हो, मेरे साथ मियां उमर सईद साहब हो, राना सदीक साहब हो, ना किसी का कोई बेटा आ रहा है, ना किसी का कोई भाई आ रहा है, ना किसी का कोई रिश्तेदार आ रहा है। सेक्टर से कैंडिडेट उठाए, एसोसिएशन से कैंडिडेट उठाए, बरादरी के बाद में देखो, पहले सेक्टर देखें। कल जब प्लास्टिक एसोसिएशन को बुलाया, ना मैं गुजरांवाला चैम्बर के सदर हूँ, एक आपके बिजनेस ग्रुप का छोटा सा नुमाइंदा हूँ। कल सैनिटरी एसोसिएशन को बुलाया, इस्लामिक एसोसिएशन को बुलाया, एफपीआर के सारे तीनों चारों सीनियर वहाँ पर ऑफिसर ने उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपके 2-3 सेक्टर आ रहे हैं, तो इनका हमें बताएं कि आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैंने कहा मैं लाहौर जा रहा हूँ, काम है, लेकिन प्लीज़ ये ज़रूर कीजिएगा कि मुझे पता है कि दोनों तीनों पार्टियाँ थर्ड शेड्यूल में जा रही हैं, इन पे इतना हमने बोझ डालना है, इतना मुनासिब काम करना है कि ये आपको टैक्स भी अदा कर सकें और अपनी सहूलियात और अपने मामला भी रख सकें। इनसे पहले मुझे पता है ये गए होंगे, उन्होंने उनको बहुत लंबी छोटी बातें सुनाई होंगी, आपके गुनाहों को हम चेक करेंगे और आप ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सारी बातें वो मेरे साथ अक्सर जब मैं पिछले साल जाता तो ये करते थे। तो ना कोई सीट होने के बावजूद मैंने हर कमिश्नर से 5-10 मिनट लगा के रिक्वेस्ट की कि गुजरांवाला बिजनेस को बराए मेहरबानी टैक्स भी अदा करेगा, चलने में देंगे, एक मिलकर अगर हम लोग चाहे वो बिजनेस ग्रुप हो, चाहे गुजरांवाला चैम्बर हो, एक ब्रिज का किरदार अदा करेंगे। आपकी तरफ से हमें प्यार और मोहब्बत मिलेगा, हमारी तरफ से आपको इंशाल्लाह टैक्स मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिसीज जो है वो चैम्बर की, वो एफपीआर टैक्स मैटर्स, हमारी बाकी जो दिन और रात की जो कागज होती है, हमारे इन्वायरमेंट के मसाइल है, हमारे यहाँ पे और बेशुमार मसाइल हैं, ये बिजनेस के मसाइल हैं। मुझे अभी पायदा साहब और चीमा साहब कह रहे थे कि आपने चंद बार पॉलिसी के मतलब अपने मशहूर के मतलब बोले हैं। मैं समझ रहा हूँ कि
किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का, किसी भी ट्रेडर का सबसे बड़ा मंशूर ये है कि उसके लिए उसके टैक्स के मैटर्स, उसकी जो बाकी एनवायरनमेंट के मैटर्स, उनका चैम्बर की इज्जत एहतराम होना, चैम्बर का कार्ड किसी जगह दिखाया जाए तो उसकी वो बंदा कम अज कम अगर उठ के ना खड़ा हो तो उसकी आंखों में इज्जत और प्यार जरूर आना चाहिए। हमारा मंशूर ये है कि हमने पूरे गुजरांवाला के इंडस्ट्री को, ट्रेडर्स को, इम्पोर्टर्स को, एक्सपोर्टर्स को साथ लेके चलना है, कंधे से कंधा मिलाना है और हमने हमारे ग्रुप ने इनकी इज्जत करवानी है। मैं समझता हूँ इस वक्त मेरे पास मेरे सारे कैंडिडेट खड़े हैं, मेरे सदारती उम्मीदवार खड़े हैं। मैं राणा नेबर नवाज साहब को रिक्वेस्ट करूँगा, बाकी एसोसिएशनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग आपके पास अल्लाह ताला से रहमत मांग के, अल्लाह ताला से दुआ मांग के आप दोस्तों के पास हाजिर हुए हैं। हमारी हाजिरी कबूल करें और हम जब तक कहते हैं इस चैम्बर में, इस ग्रुप में आपकी खिदमत करते रहेंगे। हमें जरूर वेलकम करें जिस दिन आपको ये शक पड़े कि इनके अंदर कोई बार बार भी कोई तमाम की खराबी आई है, कोई तकबर आया है, कोई काम के सिलसिले में राणा सजीव जैसा काम नहीं हुआ, कोई असम अनीस जैसी एग्जीबिशन नहीं लगी, कोई आमन रहमान जैसा बंदा वहाँ पर बैठ के काम नहीं किया, मियां उमर सिंह जैसा जी सूर आदमी वहाँ पर मौजूद नहीं है। उस दिन जब हम आए तो आप हमें कहने पाए दरवाजे से कि आपके लिए जगह नहीं है। ये आपको मैं ओपन बात दे रहा हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरे कंधे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो आवाज़ देने जा रहे हैं, जो पिछले आवाज़ दी थी उस पर पूरे उतरेंगे। और मैं समझ लो मेरी कुछ बातें ज़्यादा लंबी हो गई हैं, मैं ज़्यादा इसे अपना लंबी नहीं करना चाहूँगा। मैं इंतहाई मशहूर हूँ सारे दोस्तों का, सारे ग्रुप्स का, सारे मेज़बान का जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और इतना बड़ा इस्तेमाल किया। इंतहाई मशहूर हूँ। इसके बाद मेरा ख्याल है कि राणा नईम साहब अपने दोस्तों से जरूर कुछ ना कुछ गुजारिश या करेंगे। मैं